Thank you. Slides. Sir, good evening, Sean here. Yeah, good evening, good evening. I could see the energetic face. Yes. As usual, you are always great. So you're enjoying some beach? Yes, I supposed to be give this kind of feeling at least in this summer, you know. We can enjoy the beach sitting at home itself. Yes, I think it's Kolam Beach. Yes, it's a Kolam beach. Yes, I think you are a frequent flyer to the Goa, I believe. Huh? That's great. Yeah, please, students, you can please start. Good afternoon, respective dignities and all the participants present here. Hope you all are safe and healthy at home. I, Shruti Rani, along with my co-host Yatin Goyal, here to welcome you all in the great workshop. As we know, the IEEE-CU is the junction for innovative-minded people. So, if you are worried about how to bridge the gap between campus and corporate, or got questions about the different spheres of research, education, and administration, then you are at the right place. Yes, you heard me right. Today we are having one of the most renewed personality with us, none other than Dr. Manpreet Singh Manna. Over to you, Ratin. We extend a warm welcome to the expert of today's workshop, none other than Dr. Manpreet Manna sir. He is the chairperson of IEEE Fortnite Society, Delhi Section Chapter, Rajasthan, former director of AICTE and founder director of SWAM. Your presence in the event have leveled up the motivation not only for participants but for all the viewers who are watching presently. With utmost pleasure, I would like to take an honor and welcome sir. Now the stage is yours. Thank you. Thank you very much. Dear students, you have to mute yourself, Kajal. Yes, that's great. First of all, I must thanks to the whole Chandigarh University family, starting from Sandhu Saab, the great visionary for our North India, especially for the Punjab education system. And he brought so many gems in CU, starting from Professor Babaji, great leader, academic leader, Professor Sohi, the man of electronics and communication from our region, India, well-known personality for the great research. And he could bring some different jewels from the other part of country also, like Professor Shan is sitting in front of me. I could see the dynamic face, always want to do something out of box, out of mind for something for the education. Dear students, if you think that if I'm talking to be just pleasing your management or your, I must tell you, you are blessed with a great team. Many universities, they have a name, they have a fame and branding, but sometimes we could not sustain and maintain the great academicians and even the grassroots level teachers like Kabrinderjeet. He's a grassroots level teacher who works on a ground. He's a humble teacher. So many more I could not name over here because the list is so big, as CU having great teachers, and of course other universities are also doing amazingly in my country. But for the students' development, when we talk about the development, it is something about the personality, the persona. I will just use a single line on which today I'm going to share my screen and I'm going to discuss. Just make a note. In my country, India, industries hire you for your high IQ. Industry hires you for your high IQ and they fires you because of low EQ. Because of low EQ. This is the one reality I just wanted to share with you. So whatever we speak, whatever we discuss about the entrepreneurship, startup, or anything which you are expecting from me to be speak for next 60 minutes of time, I think we should be in all around of all this discussion. So that's why I given a theme of that, and now I'm going to share my screen because other than my face, आपको screen ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि मेरी शक्ल से ज़्यादा पीपीटी ज़्यादा बढ़िया है. शक्ल से ही बात याद आई, आप में से एक रोल नंबर है 9158, आपके रोल नंबर वाइज रजिस्ट्रेशन है.
भाई साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने क्राइंग बेबी का प्रोफाइल लगाया हुआ है, नोना बेबी क्यों रो रहा है? आई वांटेड टू जस्ट नो व्हाई यू आर ऑप्टेड दिस, मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड। कहीं दिल भी टूट गया है क्या? आप मेल है तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि गर्लफ्रेंड छोड़ गई है क्या? अगर वो फीमेल कैंडिडेट है तो देन आई हैव नो अदर वर्ड्स। हमारी बहुत प्यारी बच्चियां हैं। तो ऐसा है कि हम अपनी जो जीवन की शुरुआत है आज के इस समाज में जो हम देते हैं वो हमारा फेस है। एंड टुडेज योर फेस इज योर ट्विटर, योर फेसबुक, योर लिंक्डइन एंड ऑफ कोर्स योर इंस्टा। दिस इज योर फेस। आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर मन्ना ने बात किधर से शुरू की। मैं बात पहले वहीं से शुरू करता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं पाई जाती हैं और ना ही हम किताबों में लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह के जब हम प्रोग्राम में आते हैं तो हम ये बात सामने रखते हैं। Sometimes there was a very great openings made by one of the corporate. अच्छी openings थी. There were the huge applications. They shortlist the applications. Before going from that, they did some, Reiki to be inviting for the personal interview to the candidates. What was that? They gone to the concerned candidate's Facebook. You must be amazing. Why have that done this? And it took 15 days of time for the team of 7 members. They open their Facebook page or maybe the Facebook account, means entering from the public view, could see their posts, what kind of posts they are putting during their college time. आप बहुत अच्छे से जाके कोरा में कुछ लिखते हैं, लिखना भी चाहिए। आप कन्फेशन पेज पे भी लिखते हैं, आप अपने लिंक्डइन पे भी लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, किसके बारे में? समटाइम्स यू डिस्कस पॉलिटिक्स, समटाइम्स यू डिस्कस स्पोर्ट्स। आजकल ओलंपिक्स चल रहा है, आपके अपने व्यूज होंगे। आपने शानू के लिए बहुत अच्छे शब्द लिखे होंगे। शानू ने हमारे देश को सिल्वर मेडल दिलवाया, द ग्रेट डॉटर ऑफ आवर कंट्री, हमारी देश की नारी शक्ति। तो ये आप लिखते जा रहे हो और बीच बीच में आप कुछ स्लोगन्स भी लिखोगे, कुछ अपनी मानसिकता का आप वहां पे प्रमाण दे रहे होते हो। उससे हमें क्या पता चलता है? हम आपके पिछले 5 साल का डाटा उठा लेते हैं। आफ्टर दिस 5 years data, we will come to know how you are nationalized, how much you are inclined towards to your state development, how much you are very much keen कुछ घूमने गए हैं, वो फोटो डालिए तो पता चल रहा है कि यू आर अ फैमिली पर्सन। आपको अच्छा लगता है माता पिता की कंपनी भी। इफ यू आर जस्ट बोजिंग आउट एंड पुटिंग योर you and today we are in the club this, it's okay, then पता लगता है कि ये बच्चा वीकेंड्स को एंजॉय करने वाला। तो मेरे कुछ टारगेट्स ऐसे होंगे जिसमें वीकेंड्स खराब होने से शायद इसको डिस्टर्बेंस हो सकती है। आप सोच रहे हैं कि हम जाने अनजाने में बहुत कुछ पोस्ट डाल देते हैं। आज का बीजा हुआ बीज कल वो आपका पेड़ बनने वाला है। कल वो आज पौधा जो लगा रहे हैं आप स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन, क्योंकि डिजिटल प्रिंट्स कैन नेवर बी डिलीटेड। अब मुझसे ज्यादा आप ये मीडिया पेगासस आ रहा है। अब हमारे राजपूत हमारे बीच में नहीं रहे थे। व्हाट्सएप के पिछले 6 महीने की उन्होंने पूरे आंकड़े, नहीं तो वो लोग कह रहे हैं व्हाट्सएप तो जी वो तो बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस है। क्या बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस है भाई? क्या इनक्रप्टेड है? सारे तो मैसेज लगा के बाहर निकाल के रख दिया आपकी उसने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने एक बार कुछ टाइप किया मोबाइल पे या लैपटॉप पे, आपने बोला कि मैंने डिलीट कर दिया। आपने डिलीट किया, हमारी मशीन लर्निंग डिवाइस ने डिलीट नहीं किया। डाटा कैन नेवर बी डिलीटेड वंस यू टाइप्ड इट। इवन आपने सेंड भी नहीं किया अगर आपने टाइप किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेगासस जैसी ऐसी एप्स आ गई हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों का हम बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक तरफ तो हम डिग्री हासिल कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ ह्यूज number of interview sessions, we wants to be placed well in this country and world, and why not to be? Sometimes we are creating some kind of a dirty data along with our personality which does not match to my role model or as a lifestyle. So that makes sometimes different approach. So आज beginning in my talk I want to, कोई इसको एंटरप्रेन्योर बोल देता है, कोई एंथ्रोप्रेन्योर बोल देता है, कभी यूके इंग्लिश आ जाती है, कभी यूएस इंग्लिश आ जाती है, इंडियन इंग्लिश तो आ ही नहीं पाती है। हम तो यूके और यूएस में लड़ाई करते हैं, वेदर वी शुड टॉक एजुकेशन और एजुकेशन, शेड्यूल और शेड्यूल। अरे भैया दोनों को छोड़ो, आप अपनी दिनचर्या बनाओ। आई मीन टू से हम थोड़ा सा हिंदी में भी सोचें और हिंदी में भी बनाएं। हिंदी भी एक भाषा 35 देशों में बोली जाती है और 6th लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज बन चुकी है हमारे वर्ल्ड में। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड मैनेज, दोनों चीजें। आज
आप स्टूडेंट्स ने एक इवेंट, आप तो एक 1 वीक या मेरे ख्याल पूरा पखवाड़ा मना रहे हैं, मे बी 15 days प्रोग्राम यू आर सेलिब्रेटिंग 2.0. So today you are organizing something campus to corporate. When you're organizing, you are managing speakers, you are managing attendance, you are managing the backdrop, you are managing so many things. So if you think that, if you today as a organizer, as a secretary, or as a student volunteer, you organize some event, it is the beginning of your entrepreneurship. आपके अंदर वो डीएनए डेवलप होना शुरू हो गया, जेनेटिक थ्योरी बननी शुरू होगी, हाउ टू मैनेज. जब कभी किसी बाहर की दुनिया से बात करना, एचआर ह्यूमन से, यानी कि अदर देन योर टीचर, अदर देन योर पेरेंट्स, अदर देन योर नेबर, अदर देन योर क्लासमेट, देन you are doing something entrepreneurship. And entrepreneurship does not mean that you have to sell something. हमारे देश में या कई बार ऐसे हम कुछ ऐसी मिस इंटरप्रिटेशंस क्रिएट हो जाती हैं, आपको लगता है कि सर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना, मुझे सेल्स बॉय नहीं बनना. अरे नो 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 नो. Entrepreneurship does not mean that you are going to be a marketing guy or you're going to be a manager in the bank or you're going to be sell something to the society. Nothing like this. There are different types of entrepreneurship. For example, आज मैं आपको बताऊंगा भी विद एग्जांपल, एक एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बताना पड़ेगा. मुझे 60 मिनट्स मिले हैं, आई हैव टू गो बाय दैट स्पीड ओनली. बातें क्योंकि मेरी चर्चा इतनी लंबी हो जाती है, कई बार पता नहीं चलता कि रात पड़ जाती है, लेकिन मैं 60 मिनट्स में बात खत्म करूंगा. पहले ये तो देखें कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास होता क्या है. आपको ये पता है सक्सेसफुल सेलिब्रिटी बनना है तो अमिताभ बच्चन जैसा कद होना चाहिए, वैसा पर्सोना होना चाहिए, बात करने का हे जॉनी ऐसे कुछ डायलॉग मारने का स्टाइल होना चाहिए, ऐसे मिस्टेड होने चाहिए, वो तो पता है. आपको पॉलिटिशियन का भी पता है, मोदी जी जैसी बात करनी आनी चाहिए, अच्छे से वहां पे कपड़े पहन के आना चाहिए पब्लिक में, अच्छी, ये भी पता चल गया. I don't want you a political leader. I don't want you even academic leader. मुझे आप में से अच्छा डीन प्रोफेसर भी नहीं चाहिए. हम तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं. ये कोई एक भाई साहब लाल पेन से लकीर खींच के क्या मुझे बताना चाह रहे हैं? या तो वो इंडोर्स कर रहे हैं मेरी टॉक को, मेरी पीपीटी को, या वो काट रहे हैं कि सर नहीं जमा, नहीं जमा. चलिए खेलते रहिए. स्टाइलिश पेन आपके हाथ में है तो आप खेल सकते हो, तो आप खेलिए. Whoever is playing. Sorry to interrupt. Participants, if you are doing this, we are currently noting down your names. So don't do any mistakes. नहीं करने दी. Let them enjoy. What they are doing as this is one. They want to show their presence. You know, अब किसी बहाने उनको तो आप बोलने के लिए मंच पे बुलाया नहीं, वो डॉक्टर मन्ना को बुला लिया. वो कह रहा सर मुझे भी कभी बुलाइए. तो अगर इनको मैं बुलाऊंगा 5 मिनट पे, तो मैं वादा करता हूँ वो 5 मिनट में लगातार अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे. वादा करता हूँ 5 मिनट लगातार अपने आप में बोलने के लिए वी नीड अ कंटेंट. इंटेंट भी नहीं है, कंटेंट भी नहीं है, लेकिन उनके पास खेलने के लिए तो पेन है ना. तो चलिए कोई ना, उनको पेन के साथ खेल लेते थे, हम कंटेंट पे बात करते हैं. So driving out something, the very first successful part is driving out something. देखो उसने क्या ड्राइव आउट किया, उसने एक मार्कर से लाल लकीर 2 बार खींच के ये ड्राइव आउट किया. मन्ना को मत सुनिए, मुझे सुनिए. तो भाई साहब तुम्हारी दुकान में क्या बेचने वाला, बताओ कौन सा समोसा बेच रहे हो, मेरे भटूरे ठीक बिक रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम भैया, बिक रहे हो ना. थिंकिंग एबिलिटी, आपकी सोच क्रिटिकल होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. क्रिटिकल थिंकिंग पॉजिटिव के बिना नहीं आएगी, माइंड पॉजिटिव होना चाहिए. इसकी लिखने की बजाय अगर वो चैट बॉक्स पे साथ के साथ कुछ ऐसा लिख देता ना, सुपर अमेजिंग, वी आर हैप्पी टू बी हैव द 50 स्टूडेंट्स टुगेदर, आज हम कुछ सुन पा रहे हैं, आज हमारे बीच में स्पीकर ने बुकिश बातें ना करते हुए अंग्रेजी को छोड़ के हिंदी को पकड़ा, हमें अच्छा लगा, तो शायद डिफरेंस आता, ज्यादा अट्रैक्शन आ जाती, ज्यादा चैट बॉक्स पे लोगों को दिखता. तो क्या होना चाहिए, थिंकिंग एबिलिटी. भैया दिमाग से सोचना भी पड़ता है ना इस चीज के लिए. एप्टीट्यूड फॉर द ह्यूमन रिलेशंस. एक किसी को बस में ट्रेवल करते समय 2 तरह के लोग मिलेंगे. एक तो कहेगा मैं अपने मोबाइल को छोड़ूंगा नहीं, अपने बस पे चढ़ते से मोबाइल पकड़ा था, बस से उतर तक मोबाइल पकड़ा हुआ है, आइदर चैट हो रही है, आइदर कॉल हो रही है, आइदर गेम खेली जा रही है, आप कुछ भी कर रहे हैं. एक है मुझे एक बस में सफर करने का मौका मिला है, मोबाइल जेब में पड़ा है, कोई कॉल आएगी तो ले लूंगा, मैं देखूं बाकी लोग कैसे सफर करते हैं. वो एक महिला बैठी है, छोटे बच्चे को भी कैसे सफर करा रही है, आंटी आप इसको भी मास्क पहनाओ. अच्छा, ये कंडक्टर वाला उसको छुट्टे मांग रहा है, उसको तंग कर रहा है कि तेरे पास 10 का नहीं. कंडक्टर को बोलो आपको अनिवार्य है कि मिनिमम इतनी आपको चेंज लेके चलनी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके एक्ट में लिखा हुआ है. अवेयरनेस. सारी बस वाले हैरान हो जाएंगे, ये कौन हमारे बीच में आया है, ये कौन हमारे बीच में आया जो सबको देख भी पा रहा है और स्माइल भी दे पा रहा है. कोई नया आया, आंटी आप इधर बैठ जाओ, आप थक जाओगे, कोई बात नहीं मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ, मेरा तो छोटा सा बैग ही, मैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, वैसे आज दूसरी बस में आया, हमारे तो येलो बस ही बहुत अच्छी है, लेकिन आज दूसरी बस में आया हूँ. तो एक उसके बाद लोग कहेंगे बेटा तुम कहाँ रहते हो, गॉड ब्लेस यू बेटा, भगवान तुम अच्छी डिग्री करो बेटा, तुम अच्छा जीवन. तो वो मोबाइल पे खेलने से शायद नहीं मिलना था,
यानी कि आपका एप्टीट्यूड ह्यूमन रिलेशंस बनाने का, और आपको पता नहीं है कि कल किस क्षण पे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रोल नंबर नोट किया 9158, कल कहीं इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, तो ये कहेगा सर आपने मुझे पहचाना, मैं कहूंगा मैंने नहीं पहचाना। सर मैंने आपका सेशन अटेंड किया था। अरे भैया वो तो वर्चू था। सर मैं पता कौन था, मैं वो 9158 रोल नंबर था जिसने एक रोता हुआ बेबी का, अच्छा ये तो याद आया बेटा, ये तो मुझे याद आया। और उसने कहा ना सर मैं वो था जो लाइनें मार रहा था, तो पता चला मैं भी वहां पे लाइन मार दूंगा। बेटा तू तो चल, तेरी लाइन तो अब मैं मारूंगा। So it's a human relations, it's sometimes going to be a positive, sometimes going to be negative, but we should keep our communication skills very effective. If today, after 60 minutes, I will talk to you people, if I will talk to you people, and if you say that, sir, it was boredom, क्यों? सर रोज हमें बांधा जा रहा है, हम पर मैंडेट किया गया कि इतने सेशंस करने हैं, आपकी अटेंडेंस लगनी है, हमें आना पड़ता है, हमें आके ऑन करना पड़ता है, हमारे लैपटॉप की बैटरी जाती है, हमारा डाटा पैक जाता है, हमें आपको सुनना भी पड़ता है। और भाई साहब आप अगर गलती से सोच रहे हैं ना कि आज आपने ऑन करके अटेंडेंस लगवा रहे हो तो वापस आ जाइए, मेरे सेशन में मैं बीच में बुलाता हूँ, मैं बात करूंगा आपसे, अगर मेरी बात का आपने जवाब, तो बेटा मेरा थोड़ा सिस्टम यही है, मैं तो कहता हूँ ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। तो फंडा इज वेरी डिफरेंट, द कम्युनिकेशन स्किल हैज टू बी वेरी इफेक्टिव। ये टेक्निकल एबिलिटी की मैंने बात की है, हाउ टू बी कनेक्ट विद यू। आपने मुझे जूम पे बुलाया, मैंने जूम पे क्या यूज किया, बैकड्रॉप यूज किया, के बैठने का लोगों को अच्छा लगेगा। फिर मैंने देखा मेरी टर्बन के साथ भी ये वाला कलर मैच करेगा, कलर थेरेपी को भी लेके आना है, प्लेजेंट मूवमेंट को भी क्रिएट करना है। एंटरप्रेन्योर का यही काम होता है, आई एम एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर। अगर मैं 60 बच्चों को अपनी क्लास में जगा के नहीं रख सका ड्यूरिंग माय लेक्चर, आई थिंक आई एम नॉट अ गुड एंटरप्रेन्योर, बिकॉज आई कुड नॉट सेल माय कंटेंट, आई कुड नॉट सेल माय सेल्फ, आई कुड नॉट मेक माय स्टूडेंट्स कंफर्टेबल विद मी। सो एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर बनना, सोशल एंटरप्रेन्योर बनना, हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर बनना, पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर बनना। आज एक एमपी को 4 एंटरप्रेन्योर्स चाहिए कि भैया बताओ मुझे वोट बैंक कैसे मिलेगा, तो वो उनको तरीका बताते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे कैसे रहना है, आपको कौन से कपड़े पहन के मार्केट में आना है, आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, फालतू की लस्सी मत करेंगे आप, कोई ऐसा कार्ड नहीं खोलेंगे जिसमें आपने कोई पंगा ले लिया हो, किसी ऐसी आपने चीज नहीं मुंह से लूज टॉक कर देनी है जो पता चला कि बवाल बन गया, और फिर पता चला पार्टी भी आपको कहेगी 5 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है, फिर मोदी जी भी आपको कहेंगे मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा लाइफ में दोबारा, क्यों ऐसी स्टेटमेंट दे दी। भैया पंगा ही मत लो, बड़ी मुश्किल से एमपी बने हो तो शांति से एमपी बन के रहो। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, आप जैसा कि एंटरप्रेन्योर जो बताएगा सर मार्केट में जाके अच्छा स्पीकर कैसे बनना है। आज सारे पॉलिटिशियन तो नहीं होते ना कि जो वो ग्रास रूट के पॉलिटिशियन होते हैं, मेरे देश के 85% पॉलिटिशियंस तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ए भी नहीं पढ़ा हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस का बी नहीं पढ़ा हुआ। मैं छोड़ो, उन्होंने कहीं उन्होंने तो यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी हुई, यूनिवर्सिटी का हेड नहीं देखा हुआ, तो पैराशूट पब्लिक, तो उनको फिर आप जैसे पढ़े लिखे कई बार पढ़ाते भी हैं। अपॉर्चुनिटीज रिकॉग्निशन, व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी, हाउ से मिल रही है आपको, अपॉर्चुनिटी क्या मिली, आपने स्क्रीन पे लाइन खींचनी शुरू की, लाल या नीली, ये अपॉर्चुनिटी मिली। आप अपॉर्चुनिटी को कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, क्या वो जो अपॉर्चुनिटी है आपकी, वो अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो अपॉर्चुनिटी आपको अपग्रेड कर रही है कि आपको डिग्रेड कर रही है अपनी सोसाइटी में। अब मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, आपकी क्लास के जो 60 बच्चे हैं ना, वो जैसे आप लाइन खींचते तो आपका नाम पढ़ लेते तो वो तो रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो उनकी एक इमेज बनेगी अपने प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति कि ही इज दैट टाइप ऑफ पर्सन, थोड़ा इससे हमें बच के। मान लो कल कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, टीचर ने कह दिया 4 बच्चों ने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, अरे तुम विशाल को ले लो, सर विशाल को नहीं लेना, सर वो पंगा ले लेता है, कई बार वो कहीं गड़बड़ ना करा दे, टीचर गुस्सा खा जाएंगे, सर उसने कोई ऐसी देखो उस दिन भी स्क्रीन पे लाइनें मार रहा था सर। तो क्या कर लिया हमने जाने, हालांकि विशाल की पाइथन बहुत अच्छी है, विशाल की सोल्डरिंग बहुत अच्छी है, विशाल की मार्केट में जाके एक अच्छे से बार्गेनिंग करके प्रोडक्ट लेने की, लेकिन विशाल की एक ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी गेन करते समय उसने कुछ मिसयूज कर लिया। थोड़ा सा भी अगर आप अपने ट्रैक से आगे पीछे चल पड़ते हैं जहां पर आपका ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, आई थिंक वी लूज अवर रेपुटेशन, वी लूज अवर अपॉर्चुनिटी। सो व्हाट इज द बिजनेस कॉन्सेप्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। Opportunities can be recognized with a different part. During COVID, many of the people recognize that mask is important. They start manufacturing mask and they're selling the mask. Somebody they approach for the sanitizers. They start creating sanitizer. I know one guy in Kerala. The Kerala guy, he is a photocopier. आपके शहर में कम से कम 500-600 फोटोकॉपियर रहे होंगे जो सिर्फ फोटोकॉपी करते हैं आपके थीसिस की, आपके डॉक्यूमेंट्स की, और 1 रुपया 50 पैसे जो भी लेते हैं। उस बंदे ने क्या किया, मेरे पास फोटोकॉपी मशीन है, मेरे पास एक आर्ट है, उसने कहा कि 15 मिनट पहले आइए,
अपनी एक फोटो या तो मुझे उस टाइम खींचने दीजिए, या आप अपनी फोटो मोबाइल से मुझे ट्रांसफर कीजिए, मैं आपका मास्क बनाऊंगा, जितना आपका मास्क लगाएंगे लगेगा कि मास्क लगा नहीं हुआ, और उसने वो क्या किया, आप ही के फेस का, अगर आपके यहाँ पे मूछें हैं, दाढ़ी है, तो वो आ रही है, यानी कि फेस का ही प्रिंट, कलर्ड प्रिंट निकाल के मास्क बना के उसने 75 रुपए में देना शुरू किया। आप गूगल आउट कर लीजिए अगर आपकी मेरी बात पे विश्वास नहीं है। उसकी फोटोकॉपी का धंधा साइड पे चला गया, क्योंकि कोविड में क्या फोटोकॉपी हो रही थी भैया, जब स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दफ्तर बंद, तो उसने कहा मैं रोटी कैसे खाऊंगा। आप सच में सोचो कि फोटोकॉपी मशीन का धंधा ही बंद हो गया था। उसने कहा जब मेरे पास मशीन है, दुकान है, दिमाग है, तो उसने रिसोर्स का यूज करके मास्क बनाया। कौन से वाला? फेस मास्क, फेस लुक लाइक मास्क। आप गूगल पे डालिए, यू विल फाइंड द केरला गाय। उसको देख के यूपी ने शुरू किया, पंजाब ने शुरू किया। यानी कि एक बंदा बिना एमबीए किए, बिना कंपनी खोले कितनों को जॉब दे गया। जस्ट इमेजिन, कितनों को आइडिया दे गया जॉब करने के लिए, उनको उनको उनकी रोटी चला गया, उनकी रोजी रोटी चला गया। कितनी ब्लेसिंग्स लगी होंगी उसको। उसको अखबार में पढ़ के, अरे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, फोटोकॉपी मशीन तो मेरे पास भी है कलर्ड वाली, मैं भी कर लेता हूँ। तो उसका कंपटीशन भी नहीं है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। केरला का धंधा केरला में आएगा, केरला वाला तो पंजाब में मास्क नहीं बनाने आने वाला था। तो अगर पंजाब में किसी ने बनाया, हरियाणा में किसी ने बनाया, तो क्या फर्क पड़ गया। So this is the way how to recognize and how to receive and how to achieve. आपको जॉब क्रिएटर बनना है कि जॉब सीकर बनना है, you have to decide before sitting on this platform. So that has to be make the corporate. आपको कैंपस से कॉर्पोरेट पे जाने के समय आपको ये सारे सिचुएशनल फैक्टर्स पता होने चाहिए। आपको, आज आप डिग्री कर रहे हो, आपको जब आपने एडमिशन ली थी, आई एम आस्किंग टू द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, सच में बताइए जब आपने एडमिशन ली थी तब कोविड आया था? नहीं आया था। आपने क्या सोच कर एडमिशन ली थी? मेरी तो जॉब लगी लगाई। सिचुएशंस गॉट चेंज और सडन अब क्या लग रहा है, सर जॉब छोड़िए, मैं तो डिग्री भी छोड़ने की सोच रहा हूँ। क्यों भाई? सर मुझे पता कुछ मिलना ही नहीं है। रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको एक चीज बताऊं, जैसे ही एक दरवाजा बंद हुआ, 1000 डोर्स गॉट ओपन। यू कांट इमेजिन जिन्होंने इस 2 साल में पैसा कमाया है। होटल इंडस्ट्री अगर डूबी तो कोई तो चमका। एंड ऑफ द डे फंड तो फ्लो हुआ है, कैश तो फ्लो हुआ है, लोगों ने रोटी खानी बंद नहीं की। एग्जांपल दे दूं, जोमेटो का जस्ट गूगल पे डालिए कि उसने आईपीओ निकाला था, 1 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन। अभी आईपीओ के शेयर नहीं निकले हैं, सबको मिल भी नहीं सकते। जोमेटो जिसने कभी अपना एक ढाबा नहीं खोला, उसकी अपनी खुद की एक किचन नहीं है, उसके पास एक बावर्ची नहीं है, वो जोमेटो पूरे इंडिया को खाना खिला रहा है। और कोविड के टाइम पे उसने खाना आपके घर तक पहुंचाया। तो जब उसने आईपीओ निकाला तो क्या मिला? आप सबने उसका आईपीओ खरीदने के लिए बटन दबाया इन द मार्केट। आपको पता है शेयर मार्केट को ऊपर ले गया उसका आईपीओ। ये जोमेटो का जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। आप पूछो जोमेटो कोई पावर प्लांट बना रहा है? जोमेटो क्या फ्लाईओवर बना रहा है? जोमेटो क्या एआई पे कोई टूल बना रहा है? जोमेटो तो कुछ नहीं कर रहा। जोमेटो तो एक ऐप है, ओयो तो एक ऐप है, एयरबीएनबी एक, ओला ओला रूम्स, उसका एक भी कमरा, एक भी कार नहीं है ओला की अपनी, एक भी मारुति 800 तक कार नहीं है ओला की। और आज देश की मर्सिडीज उसकी लाइन पे लगी हुई है। मर्सिडीज वाले ड्राइवर कहते हैं सर मुझे रजिस्टर करना है आपकी ऐप पे, मुझे ओला का पार्टनर बना दीजिए, मुझे अपनी मर्सिडीज में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, 2 कस्टमर मिलेंगे तो मेरे पैसे मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड द आइडिया ड्राइविंग क्रिटिकल थिंकिंग, एचआर क्रिएटिंग एंड देन रीचिंग टू दिस लेवल। ये करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और आप सोचेंगे नहीं सर सारे आइडिया तो अब हो गए, अब क्या बचा सर? अच्छा हो गए। फूड पांडा पहले आया था, जोमेटो तो तब पैदा नहीं होता जब फूड पांडा आया था। कहां चला गया फूड पांडा? जस्ट लेट मी नो। तब फूड पांडा के टाइम पे जोमेटो ने कहा, स्विगी ने कहा छोड़ो फूड पांडा आ गया, अब मेरे से किसने पैसे रोटी कमानी है। फिर फूड पांडा तो नजर आया। अच्छा और सुनो, नोकिया सुना था ना कभी आपने? अपने पापा को पूछना कहेंगे बेटा आज से 15 साल पहले मोबाइल एक ही कंपनी का आता था, एक ही कंपनी, सिर्फ नोकिया। ईंट जैसा मोबाइल, हाई डेंसिटी, अच्छी बैटरी। आज नोकिया नजर ही नहीं आ रहा। ढूंढ ढूंढ के मार्केट में उसका सर्विस सेंटर नहीं है मेरे पूरे पटियाला चंडीगढ़ में। कहां चला गया? अगर नोकिया को देख के ओप्पो घर बैठ गया होता, सैमसंग घर बैठ गया होता, भैया नोकिया है, 62% मार्केट कैप्चर्ड बाय नोकिया इन दिस वर्ल्ड, व्हाई आई शुड मैन्युफैक्चर द मोबाइल? व्हाट दे ब्रिंग इट। आज का बच्चा सेल्फी मांगता है, बैटरी नहीं मांगता। तो उसने क्या किया? उसने आपको 20 मेगापिक्सल दिया और नोकिया वही बैठा रहा। मेरा फोन तो, अरे भाई मुझे पत्थर थोड़ा ना तोड़ने तेरे फोन से भैया, अगर तेरा फोन हीट जैसा है तो थोड़े इसमें फीचर्स भी लेके आना। अब क्यों नोकिया वापस आया? आफ्टर 17 years ऑफ जर्नी नाउ नोकिया ब्रिंग द न्यू मॉडल। अब क्या लेके आया? ओप्पो वाली चीज लेके आया, एप्पल वाली चीज लेके आया। अब क्यों प्रोसेसर चेंज किया? अब जेली बीम से क्यों किटकैट से चेंज कर आगे क्यों आया?
भैया सोए रहोगे तो पीछे रह जाओगे। अगर आप सोचे कि मैंने जिंदगी में एक बार स्टीम इंजन बना लिया तो मेरी रेलगाड़ी भागेगी, सारी उम्र नहीं भागने वाली, क्योंकि 10 साल बाद बुलेट ट्रेन चलानी है, तो स्टीम इंजन तो भैया घर लेके जाओ। दिस इज व्हाट द एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लॉन्ग लाइफ लर्नर। आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट मूविंग देन यू आर डेफिनेटली गोइंग समवेयर। क्या चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में? इकोनॉमिक फोर्सेस, सी, पैसा है। बैंक का इंटरेस्ट 12% होता था आज से 10 साल पहले एफडी का, आज तो 5 भी नहीं मिलता। आपको इकोनॉमिक फोर्सेस, अब इसके रिवर्स देखो, आज आपको एफडी तो नहीं बनानी मेरे भाई, आपको क्या लेना है? लोन। मेरे टाइम पे होम लोन पे 15% इंटरेस्ट होता था, आज अगर आप होम लोन लोगे आपको 7% पड़ेगा। इट्स सी द रिवर्सल। आप किस चीज का पॉजिटिव देखो ना। आज से 10 साल पहले किसी को स्टार्टअप की डेफिनेशन नहीं पता थी। आज आपको स्टार्टअप के लिए 50,000 से लेके 5 लाख तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही फंड दे रही है। आपके एंजल्स आ गए, एग्रीगेटर्स आ गए, एनेबलर्स आ गए। ये फंड रेजर्स कहां से? हमारे टाइम पे तो फंड रेजर वाली, हमारे टाइम पे आर&डी वर्ड होता था कॉलेज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपके टाइम पे इनोवेशन वर्ड आ गया, स्टार्टअप वर्ड आ गया, टीआईसी, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। मेरे टाइम पे आप अटल इंक्यूबेशन की बात करते हो, हमें तो पूरे डिपार्टमेंट में एक प्रिंटर नहीं होता था। आपके लिए अलग से एक रूम बना दिया गया इंक्यूबेशन, जहाँ पे एक प्रिंटर है, वाईफाई सेक्शन है, आपके पास ब्राउजिंग है, आपके पास दुनिया भर के सारे जर्नल्स आपके इंस्टीट्यूशन ने सब्सक्राइब कर रखे हैं। यू कैन डाउनलोड द पेपर। मुझे पीएचडी के लिए रुड़की में जाकर फिजिकली सोना पड़ा, वहां पे पीजी लेके, वहां की लाइब्रेरी से मुझे पेपर फोटोकॉपी कराने पड़े, तो मेरा लिटरेचर रिव्यू हुआ पीएचडी का। और आज आपको एक क्लिक से आपको IEEE के पेपर आपके लैपटॉप पे मिल रहे हैं, बिकॉज योर इंस्टीट्यूशन इज सब्सक्राइब्ड। यू हैव द NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। दुनिया भर की किताबें, मैं गूगल डाउनलोडर से किताब डाउनलोड करता था, आधे पेज सफेद, जाके खरीदो फिर वहां पे। उस टाइम पे अमेज़न भी नहीं होता था, खरीदो कहां पे? बुक सेलर कहता था किताब नहीं आ रही। आज भी मुझे याद है कि हमारी 10वीं की एनसीईआरटी की किताब पेपरों से 3 दिन पहले आई थी। एनसीईआरटी की किताब मार्केट में है ही नहीं, ब्लैक में किताब खरीदनी पड़ती थी, गवर्नमेंट की एनसीईआरटी की। आज पूरी एनसीईआरटी की किताबें आपकी स्वयं पर जाओ, सारी किताबें पढ़ी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हो ना, तो जितनी अपॉर्चुनिटीज आज आपको मिल पा रही हैं, हमें नहीं थी। लेकिन क्या उस टाइम अब्दुल कलाम जी ने न्यूक्लियर फिजिक्स में काम नहीं किया? क्या मेरे देश में 340 सैटेलाइट ऐसे लॉन्च होगी? आपसे ज्यादा सैटेलाइट के बारे में कौन जानेगा? आपने तो बुलाया सैटेलाइट के गॉडफादर, जिन्होंने पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी। आई वाज इन द प्रोग्राम, सीयू सैट प्रोग्राम चल रहा है आपका। तो 340 सैटेलाइट में जो सबसे पहला चैलेंज था, तो मैंने उनको क्यों सल्यूट किया कि सर, जो 340वीं सैटेलाइट जब लॉन्च हुई ना, तब AI और AC आ गए थे। आप साइकिल पे लेके गए थे सर सामान। आपने जब पहली सैटेलाइट जब लॉन्च की थी, साइकिल पे सामान लेके गए थे। तो इसलिए सल्यूट आपको करता हूं। विद द मिनिमम रिसोर्सेज व्हेन यू आर गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट, I think it's amazing, amazing. This is called entrepreneurship. This is called true entrepreneurship. एसी हॉस्टल में रह के कभी डिग्री नहीं की जा सकती, याद रखना। अटैच बाथरूम का हॉस्टल लेके कमरा कभी डिग्री नहीं की जा सकती। डिग्री करनी है तो 3 रूम सीटर में आके रहना, पंखे वाले क्लास आके बैठना, ब्लैक बोर्ड से भी पढ़ना, सिर्फ प्रोजेक्टर से डिग्री नहीं की जा सकती। आई टेल यू, इफ यू वांट टू डू द ट्रू इंजीनियरिंग, आस्क योर टीचर कि सर 4 साल हमें भट्ठी में रखें ताकि अगले 60 साल हम एसी चलाने लायक हो जाएं। अगर आपने 4 साल हमें एसी में रखा तो अगले 60 साल तो फिर ये प्रॉब्लम होगी कि सर एसी नसीब नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू गेट द एसी। दिस इज द फैक्ट। आप इसको एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, बट आई हैव टू से द ट्रूथ। मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी इज कस्टमर्स। आपको किसको सेटिस्फाई करना है? कस्टमर को। छोटी सी उदाहरण दूं, आज से 10 साल पहले मार्केट में जाकर अगर मैंने बल्ब भी लिया था ना 10 रुपए का, रास्ते में कहीं मेरा फिलामेंट हिल गया, बल्ब फ्यूज हो गया, तो दुकानदार कहता था कि भाई साहब 10 रुपए और दे दो, ये बल्ब ले जाओ। और आज मेरे घर में लैपटॉप भी आता है अमेज़न से, उसको थोड़ा सा भी मुझे लगा ना यार कलर ही नहीं जचा, छोड़ो, टूटना फूटना तो कलर है, चेंज आएगा, सर चेंज है प्लीज दे दीजिए, मैं लेने आया हूं। एक पैसा आपका काटेगा नहीं, आपसे पानी का गिलास भी नहीं मांगेगा, और अमेज़न कहेगा पैसे दे दूं कि कोई दूसरी चीज लेनी है। परसों मेरे बेटे ने जोमेटो पे ऑर्डर दिया, उसने 2 आइटम मंगाई लोकल वेंडर से, उसने गलती से एक ही डाल दी। उसने एक मांगी थी चॉकलेट पेस्ट्री, एक वनीला पेस्ट्री, उसने दोनों चॉकलेट भेज दी। बेटे ने जस्ट जोमेटो पे ये लिखा कि मेरी एक चॉकलेट दूसरी वो नहीं आई है। कहते सर आपकी दोनों पेस्ट्रीज ऑन द वे है, आप प्लीज ये एंजॉय करें। माय सन वाज, पापा मेरे को तो 4 मिल गई। मैंने कहा ये तो गलत है पापा, मैं कह रहा हूँ लेकिन उन्होंने मेरे से नहीं लिए पैसे, कह रहे हैं कि आपका ऑर्डर वो पहले वाला कैंसिल माना जा रहा है, यू वांट टू रिपीट। मैंने रिपीट बटन दबाया तो मेरी 2 पेस्ट्री ऑन द वे है।
चॉकलेट, और कह रहे हैं ये 2 भी आप खाएंगे। ये कब हो रहा था? ये तब तो नहीं हो रहा था, आज हो पा रहा है। फिर आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से कमा रहे हैं? हमसे ही कमा रहे हैं मेरे भाई, हमसे ही कमा रहे हैं। आपका परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया है। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? सोना इकट्ठा कर करके लॉकरों में रखते थे, आपको देके जाते थे, आप भी सोने की वैल्यू नहीं डालते थे। आप भी क्या करते थे कि सोना यही रहेगा, मैं तो कनाडा चला जाऊंगा, प्लॉट तो यही रह जाएंगे पापा, मैं तो कनाडा चला जाऊंगा। अब आज का जो युवा वर्ग है वो ये कहता है अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मेरी हेल्थ पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, मेरी टर्म इंश्योरेंस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बाद मेरे घर का ब्रेड एंड बटर सेम चलेगा। लेकिन अगर मैंने 5 दिन कमाया तो मैं 2 दिन अच्छे से खर्चूंगा, यानी कि वेस्टर्न स्टाइल, यानी कि अमेरिकन स्टाइल। तो किसने कहा इंडिया में अमेरिका नहीं बन रहा है? जितने आज कोविड क्या खुला, पूरी पहाड़ी आपने जाम कर दी। आप शुरू कर दीजिए चंडीगढ़ से कारों की लाइनें शिमला तक, तो मैंने कहा लाइन ही टूटने दिया आपने, कोई होटल नहीं छोड़ा आपने हिमाचल का। कहां से रातों रात निकल के आगे सारे ये? कोविड छूटने की देर थी। बिकॉज वी आर ईगर टू नाउ स्पेंड मनी, वी आर ईगर टू एंजॉय द मोमेंट्स। इट मीन्स हम एंटरप्रेन्योर वाले फॉर्मूला में आ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर का यही काम होता है। एंटरप्रेन्योर कहता है मैं रिस्क टेकिंग करूंगा। हमारे जो बुजुर्ग थे वो रिस्क टेकिंग नहीं होते थे, वो कहते थे सेविंग सेविंग सेविंग, बुरे वक्त काम आएगा। अब आपको बुरा वक्त 2 तरह का होता है, एक होता है हेल्थ, बुरा वक्त हेल्थ। दूसरा क्या होता है? आपकी वेल्थ को कोई झटका लग जाए, जैसे कि आपके बिजनेस में। वेल्थ आपकी इंश्योर करती है गवर्नमेंट, हेल्थ आप खुद इंश्योरेंस करवा लेते हो आजकल कैशलेस। It does mean that if you can manage your funds yourself, you are a good manager. If you cannot manage your family, your fund, your kitchen, I think you are not at all entrepreneur. आप entrepreneur हो ही नहीं सकते। आप पढ़ लो, MBA कर लो, बी स्कूल से जाके कर लो, IIM से कर लो। जिसके घर में, जिसको ये नहीं पता कि मैं अपने बिजली का बिल 10% कैसे कम कर सकता हूँ, चाहे उसने IIM से MBA कर ली, मैं तो उसको नहीं मानता। मैं कहता हूँ भैया ये डिग्री गले में टांग ले, गले में टांग ले। तुझे ये नहीं पता कि एनर्जी कंजर्व कैसे करनी है, अपने रिसोर्स को कैसे लिमिट करना है और आउटपुट कैसे निकालनी है। दैट इज द एंटरप्रेन्योर एंड इट कम्स विद द टोटली प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स इफेक्टिव लिसनिंग। लोगों से सुनो। कहां से? फ्रॉम योर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, हॉबीज, कैजुअल ऑब्जर्वेशंस, डेलिब्रेट सर्च। आइडियाज ऐसे निकलते हैं, आइडियाज बैठे बैठे निकलते हैं। और मैं एक चीज बता दूं आपको, 3 शब्द हैं, बहुत गहरे हैं, थिंक, इंक एंड देन लिंक। जब भी दिमाग में कुछ आए उसको लिखना जरूर, क्योंकि आइडिया एक सपने की तरह रात को आता है, सुबह ब्रश करने तक सपने भूल जाते हैं। एक रात में ऑन एन एवरेज हम 3 सपने देखते हैं, सिर्फ लास्ट वाला तो याद रह जाता है जब तक हम ब्रश कर रहे होते हैं। जैसे नहा के बाहर निकलते सपना आउट, और सपने में शायद आपने पता चला नोबेल पुरस्कार भी ले रखा था, तो नोबेल पुरस्कार सपने के साथ। अगर आपके मन द मोमेंट यू आर थिंकिंग, यू आर डिस्कसिंग, आपके पास छोटा सा एक पैड पड़ा होता है जिम में, छोड़िए पैड, आप तो मोबाइल आपके हाथ होता है, उसके नोट पे जाके कुछ टेक्स्ट कर दो। शाम को आराम से खोलेंगे, संडे को आराम से खोलेंगे, उसको गूगल आउट करेंगे, उसको ब्राउजिंग करेंगे और देखेंगे कि कहीं जुड़ रहा है, कहीं मैच हो रहा है। क्या इसको मैं आगे की पेटेंट के लेवल पे लेके जा सकता हूँ, डिजाइन पेटेंट कर सकता हूँ, इस पे एल्गोरिथम लिख सकता हूँ, इस पे एक आर्टिकल लिख सकता हूँ, इस पे एक 1 पेजर लिख के छोड़ सकता हूँ, किसी के साथ मिलके इसके ऊपर रिसर्च पेपर बना सकता हूँ। सोचो सोचो, you will find many things once you will come with the idea. I know many people in my country, those were the students. Because of one idea, company asked and said, सर गाड़ी बाहर खड़ी है, बताइए कौन सी पोजीशन है, आइडिया हमें दे दीजिए, ये पेटेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें कर दीजिए, आप हमारी कंपनी में GM लग जाइए। यंगेस्ट GM, 25 साल का GM, 22 साल का GM मेरी कंट्री में है। एक GNE में स्टूडेंट थे, मिस्टर रंगी, मेरे से सीनियर थे। एक आइडिया के कारण सीधा वो आपकी एक मोहाली की कंपनी में GM। तो उनको पूछा गया सैलरी कितनी लोगे, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या बात की थी, ही इज 88 पास्ड आउट GNE बीटेक। व्हाट ही सेड, यू नो, मेरे पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰਪੰਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਰੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਪੋਕਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਦ ਸੇਮ ਵਰਡ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ, ਸੇਮ ਵਰਡ ਹੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਵੈਨ ਹੀ ਕੇਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ठोकना रहना पिंड च भी सब तो टैक्स मैं पे करता। मतलब ये कितनी गर्व की बात है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं टैक्स पे हाईएस्ट पे। उसने ये नहीं कहा कि मुझे ऊपर से 2 लाख देना, अंडर द टेबल 5 लाख देना।
उसने कहा हाईएस्ट टैक्स पेयर बनना चाहता हूं अपने गाँव का, अपने गाँव का मान भी बढ़ेगा, इस गाँव से इतना ज्यादा टैक्स आता है। और कहते गाड़ी, कहते कंटैसा, उस टाइम कंटैसा चलती थी, कहते व्हाइट कंटैसा लेनी, अगे फ्लैग लाना चिट्टा। कहते लो जी, क्या बनाया था उन्होंने पता है? हमारे देश में पहला कंप्यूटराइज्ड टीएमटी मशीन, ट्रेडमिल, कंप्यूटराइज्ड, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता था। गूगल आउट कर लीजिए, आपको लगे कि डॉक्टर मन्ना कोई बात कर रहे हैं तो उसके पीछे रियलिटी भी होगी। The entrepreneurship, identification of market opportunity and the generation of the business, जिसके पास आइडिया होता है ना, उसके पास जरूरी नहीं कि धन होना चाहिए। जिसके पास धन होता है ना, उसके पास जरूरी नहीं उसको मार्केट करना आना चाहिए। जिसको मार्केट करना आता है ना, जरूरी नहीं कि उसके पास आइडिया है या उसके पास धन हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी हैव द 12 POs, हमने प्रोग्राम आउटकम्स, आप पर है हमारे हिंदुस्तान में, चाहे बीए करो, चाहे बीटेक करो, चाहे बीबीए करो, चाहे बीएससी, हमने यूजीसी ने 12 प्रोग्राम आउटकम्स बना के डाले हुए हैं। आप गूगल पे लिखिए पीओज ऑफ यूजीसी और पीओ ऑफ नैक, NAC, आप तो नैक A+ हो भैया, आपको बताने की क्या जरूरत है मुझे। उसमें जो 12th PO है ना, वो लाइफ लर्निंग है। उसका जो 9th PO है ना, टीम बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट है। उसका जो 6th PO है ना, वो एथिक्स है। ये क्यों बनाए? जब तक अगर आप टीम नहीं बनाएंगे, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। एंटरप्रेन्योर अकेले तो मोदी जी भी कंट्री नहीं चला सकते जब तक उनके पास कैबिनेट नहीं होगी, उनके पास इतने MP नहीं होंगे, वो भी नहीं चला सकते। अकेला कोई कुछ नहीं चला सकता, आपको साथ में रिसोर्सेज को लाना पड़ेगा। लाइक माइंडेड पीपल हैव टू जॉइन द हैंड्स टुगेदर, सबका साथ सबका विकास कॉन्सेप्ट रखना ही पड़ेगा, तब एंटरप्रेन्योरशिप। आप सोचो अपा जुगाड़ी, ये तो अपना है, अपा कर दांगे, चक दांगे, वो चक्या जाना भाई, दूजे दिन ही पट्ठा बह जाना। अपनी रोटी आप तो नहीं खाई दी कदी, दूजे ਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। When you will do create something, you want to make others to enjoy, then only they will pay you. Who will pay you? If somebody is by you, then only they can pay you. So you have to have the team building. Gathering and commitment of the resource is the amazing part. What is that? Risk to pursue. मैंने अभी एक रिस्क लिया। पूछिए क्या रिस्क लिया? I was doing to this session. I logged in 10 minutes earlier, but still I am on a risk. These days, cuts are happening. I am ready with my mobile. The moment power goes, I will go to 4G of my mobile data pack. But मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा 4G से पहले क्यों स्टार्ट करूं? अगर पावर चली जाएगी 2 मिनट के उसमें, मैं 4G पे आ जाऊंगा। तो मैंने कितना रिस्क लिया? ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड से 1 मिनट का रिस्क लिया मेरी टॉक को ब्रेक करने के लिए। यानी कि आपको ग्रेविटी ऑफ रिस्क पता होनी चाहिए, किस ग्रेविटी का रिस्क आप उठा सकते हैं। बिल्कुल सोचे समझे रिस्क लेना मूर्खता कहलाती है, और बिना रिस्क लिए एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते। In this world, if somebody say I have not taken a risk and I become an entrepreneur or a successful businessman, I think he's lying. He's truly lying. You have to have risk. Only the thing is, you should know the gravity. आपका कितना रिस्क की क्या चीज। कईयों का दिल जल्दी टूट जाता है, ओह पापा मैं तो लुट गया, 500 का मैंने आज पोर्टफोलियो बनाया था, मेरा टाटा मोटर्स गिर गया, बस इतने में दिल टूट गया। तो भैया तू कल ऐसा काम मत करना। अगर आपको अपनी ग्रेविटी ऑफ रिस्क एंड टू टेकिंग बैक टू रिबाउंड, क्योंकि एक चीज याद रखिए, ये साइन वेव होती है एंटरप्रेन्योरशिप। इट हैज अ क्रस्ट, देन इट मस्ट हैव अ ट्रफ। इफ इट इज अ ट्रफ, देयर मस्ट बी अ क्रस्ट। हिंदुस्तान के, वर्ल्ड के किसी भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर की मीटिंग, इंटरव्यू ले लेना जो 50 साल से है, इंक्लूडिंग रतन टाटा, इंक्लूडिंग टाटा, उन्होंने भी अच्छे दिन बुरे दिन देखे हैं। उनको भी एक बार सीएम ने कह दिया स्टेट के कि आप अपना प्लांट यहां से उठा के ले जाओ। उन्होंने भी देखा कि 180 दिन तक स्ट्राइक चल रही है, वर्कर नहीं आए, एक भी गाड़ी नहीं बनी, लेकिन आज भी नंबर 1 CSR हमारी कंट्री में करते हैं। पैसे कमाते हो तो CSR करते हैं ना। CSR का मतलब समझते हो? टैक्स भी देना, सैलरी भी देनी, उसके बावजूद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करना, उसको CSR कहते हैं। तो वो टाटा नंबर 1 है हमारे CS करने के लिए। जस्ट इमेजिन, क्या टाटा ने बुरे दिन नहीं देखे होंगे? या रिलायंस बुरे दिन नहीं देख रहा होगा कभी? या अदानी नहीं देखे? अभी रिसेंटली अदानी के साथ क्या हुआ? मतलब इट्स एवरी, जब इतने बड़े बड़े देख सकते हैं तो छोटा एंटरप्रेन्योर। अभी हमारे दुकानदारों ने कोविड में क्या देखा? बहुत कुछ देखा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक रिस्क होता है लेना, दूसरा होता है बैकअप फॉर द नेशनल डिजास्टर। बाढ़ आ सकती है, टैक्स रेजिमा चेंज हो सकता है,
क्राउड माइंडसेट चेंज हो सकता है, तो आपको समय के साथ मैनेज करना पड़ता है, मैनेज ही करना पड़ता है. सो क्रिएशन, operating and organizing, then it is going to be a implemented form. Then it is going to be implemented form. Look at here, what basically I am just sharing here. In social side, there is a people increase incident of housebreaking, increase interest in fitness, increased mobility of population, increasing the predominance of dual income families, leaves less time to cook at home. किसने पकड़ा इस चीज को? जोमेटो ने पकड़ लिया. क्यों पकड़ा? ओला ने क्या पकड़ा था? ओला ने कहा फ्यूल कॉस्टिंग, रोड सेफ्टी इज लेस, मोर चलानिंग, people are more happy with the mobile during travel, so I should give them the right. Rather they will come to their personal car, I should give them the right. They started the right, they came in their mobile, I'm happy. मेरे कार का wear and tear बच गया. मेरा road risk, if I'm on the driving seat, my road risk is too high as compared to the pillion drive. All these factors has been taken care, then they brought Ola. रिस्क क्या लिया? आपको बहुत अच्छा क्रेडिट दिया, ड्राइवर्स को बोला आपको मिनिमम मंथली इतना दूंगा भले गाड़ी खड़ी रहेगी. रिस्क था, गाड़ी तो कभी खड़ी नहीं रही. He given a coupons at the initial stage. He given a free dry rides, you know. First ride is free, second ride is free. अरे क्यों दे रहा भाई, कल तो मैं नहीं आऊंगा. कहता नहीं, एक बार आओगे, बार बार आओगे. पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें. This is the risk they have taken, and finally they succeed. आइडेंटिफाई करना सीखिए किस दिशा में जाना है, अपॉर्चुनिटीज को, उसके ऊपर रिसर्च जरूर कीजिए. अगर आपको एक शेयर भी खरीदना होता है ना, मैं उसका पहले 52 वीक का हाई और लो देखता हूँ, उसकी पॉलिसीज देखता हूँ, उसके गवर्नमेंट के साथ रिलेशन भी देखता हूँ. कौन मूर्ख कहेगा आज मैं डीएलएफ का शेयर उठा लूं? मैं तो नहीं उठाऊंगा भैया. हाँ, पता चला 2 साल बाद शायद उठाने के लिए फिर आ जाऊं, पता तो चले कि हमारी रियल एस्टेट चल पड़ी है, दोबारा बिल्डर्स आगे हैं, घर बनने शुरू हो गए हैं, मैं डीएलएफ पे चला जाऊंगा. लेकिन अगर आज मुझे आप कहेंगे सर टाटा मोटर्स पे ना जाऊंगा, तो आप मूर्ख हो भैया. आज टाटा मोटर्स पे ना जाऊं, नैनो चमका दी, इतना बड़ा एमओयू साइन कर लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हैं इंडिया में, भैया टाटा मोटर्स नहीं उठाऊंगा तो क्या उठाऊंगा? मैं तो उठाऊंगा टाटा मोटर्स का शेयर. मैंने क्या किया? रिसर्च किया, आइडेंटिफाई किया. एंटरप्रेन्योर हूं ना, कौन सा एंटरप्रेन्योर हूं? मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर. मैं खुद नहीं अपनी दुकान खोल रहा हूं, मैं शेयर्स ले रहा हूं, पोर्टफोलियो बना रहा हूं. ये भी तो एक काम है. Many of the doing this kind of business, I think you will be the great analyst. आप लोगों को भी टिप दे सकते हैं. कितने ब्रोकर्स हैं मेरे इंडिया में, एंड द अमेजिंग ब्रोकर्स, दे डू गिव टिप्स. एक लैपटॉप भी आपकी, आज आपको मैं बता दूं, एक स्टूडेंट ने अपनी एक लैपटॉप पे कंपनी बनाई, उस कंपनी को 17 महीने बाद 4 करोड़ का बेचा अमेरिका को. 4 करोड़ का. उस स्टूडेंट से बात करना चाहेंगे, उसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे सकता हूं. कोई दूसरा नहीं है वो स्टूडेंट, वो है हमारे चेयरमैन एआईसीटीजी का बेटा, उनका बेटा जो आईआईटी बॉम्बे का ग्रेजुएट है. मैं डरता था कि ये बंदा कर क्या रहना, ये मास्टर्स कर रहा है ना, ये नौकरी कर रहा है, इसके पापा इतनी पोजीशन पे है, पापा से पैसे भी नहीं लेता, अकेला रहता है पुणे में, क्या करता है पता तब चला जब उसने 2 साल बाद 4 करोड़ में अमेरिका को अपनी कंपनी, जो उसने खुद एक स्टार्टअप कंपनी क्रिएट की, सारी एप्लीकेशन ही, ऐप ही, टूर एंड ट्रैवल की. आपको कहीं घूमने जाना तो आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, वो अमेरिका ने ले ली. भैया दे दे विद योर क्रेडेंशियल्स, कहता लो 4 करोड़ दे दो, ले लो, स्टार्टअप, अमेजिंग. So there are so many such kind of examples. If I'll be keep giving, I think time will become less. Okay, the characteristics of this, it's ideal things. I don't discuss ideal things, but I will discuss certain important thing with you. What is that? ये process तो आप किताबों में पढ़ लेंगे, मैं किताबी बात कम करना चाहूंगा. हाँ, आपको एक platter दे रहा हूं मैं. When you go to the hotel and you confuse whether to have a mushroom or a paneer or a something, you say veg platter. पापा उसमें गोभी भी आ जाएगी, आलू भी आ जाएगा, मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, मैं भी खुश. तो मैं भी आपको वेज प्लेटर दे रहा हूं. भैया इसमें से कोई 4 चूज कर लेना. 4 स्किल्स अगर आपके अंदर मिनिमम 4 चाहिए होंगी, 4 आपके अंदर वो रही, मैप कर गई, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो सक्सेस. अगर आपने कहा सर क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत अच्छी बात है सर, साथ में मैं क्रिएटिविटी ले आओ यार. सर मीडिया लिटरेसी, कमाल की बात कर दी सर. चौथी में ले रहा हूं सोशल स्किल्स, आ जाओ. दिस इज द 21st सेंचुरी सर्वाइवल किट. सारी आप ले नहीं सकते, कोशिश भी मत करो, 4 उठा लो. ऐसे मैप कर लो कि आप एक चीज में कंप्लीट हो जाओ. अगर आपने रेस्क्यू टाइम ऐप उठाया,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल उठाया साथ में, तो एक ऑनलाइन सर्चिंग का टूल उठा लो, तो भी आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेंगे। बिकॉज वी हैव टू अनलर्न मेनी थिंग्स, यू हैव टू रीलर्न आल्सो मेनी थिंग्स, एंड कीप लर्निंग हैज टू बी मेक अ हैबिट। मैंने हैबिट डाली है ना, आप भी हैबिट डालिए। मैं GW बेसिक का पढ़ के आया था 93 में, मुझे आज पाइथन क्यों पढ़नी पड़ती है? क्योंकि मुझे पढ़ानी पड़ती है। सो टीचर इज अ ग्रेट लर्नर, एवरी डे वी हैव टू लर्न। उसके बीच में ये नहीं कि अभी पाइथन पढ़ रहा हूँ, बीच में कबोल भी पढ़नी पड़ी, पैस्कल भी पढ़नी पड़ी, मेरे भाई सी भी पढ़ी, C++ भी पढ़ी। आप सोचेंगे सर हमसे तो एक लैंग्वेज नहीं पढ़ी जा रही, अरे मैं क्या करता, नहीं तो फिर आप मुझे मेरी क्लास में आते। आपने कहता सर ये वो पुराने टीचर स्टीम इंजन के पास क्या जाएंगे सर, मेरी GW बेसिक का तो आज करिकुलम का हिस्सा नहीं है। मुझे स्टीम इंजन पढ़ाया गया था मैकेनिकल में, आज मैं स्टीम इंजन क्लास में पढ़ा सकता हूँ? आप तो ईंट पत्थर मारोगे, टमाटर फेंकोगे मेरे ऊपर, आप कहोगे सर बुलेट ट्रेन पढ़ानी तो पढ़ाओ, नहीं तो चलो क्लास से बाहर। सो वी हैव टू बी अनलर्न, we have to relearn, and we have to be long learning. That's important. So we are also entrepreneurs. ये सबसे important मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ। ऑटोमेशन आ गई है, कुछ करो ना करो, दो चीजें जरूर करना। भले you are doing engineering, or either you are doing mechanical engineering, either you are civil engineering. AI is a tool. Don't confuse it with the computer science. It is a tool, and you must learn something about AI. You must do at least Python. It's a universal thing. Don't link सर मैं सिविल कर रहा हूं मुझे पाइथन, भैया सिविल को भी उतनी पाइथन चाहिए जितनी कंप्यूटर साइंस को चाहिए। I'll tell you, and you believe it or you don't believe it. I'm not saying, it is a survey by PwC. 49% of the companies have already implemented the AI resources. Don't worry, jobs are not going anywhere. अगर आपको लग रहा है कि नौकरियां कम हो रही हैं, ये गलत फहमी है, आपको कोई डरा रहा है, आप डरिए मत। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज से 50 साल पहले ना, ये हमारे बुजुर्गों को भी डराया गया था। जैसे कंप्यूटर्स आए थे ना कंट्री में, तो सारे बुजुर्गों ने ना स्ट्राइक की थी, हमारे जो हमारे से एक जनरेशन ऊपर है। क्या, अरे कंप्यूटर ला रहे हो, नौकरियां खा जाएगा, ये कंप्यूटर सब कुछ करेंगे तो क्लर्क कहाँ जाएंगे, कैशियर कहाँ जाएंगे, बैंक मैनेजर कहाँ जाएगा, रेलवे पे कौन हमारी नौकरी करेगा, गार्ड कौन बनेगा। आज उनसे पूछो, हर पेरेंट्स का सपना है अगर मेरे बच्चे ने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले ली तो ये भूखा मार नहीं सकता, भूखा मर नहीं सकता। व्हाट इज दैट, हाउ सडन। आज एक आपके कॉलेज में है, आपकी यूनिवर्सिटी में पूछना इलेक्ट्रिकल में कितनी सीट्स और कंप्यूटर साइंस में कितनी है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। यू आस्क योर यूनिवर्सिटी सिस्टम ओनली, गो टू योर प्रोस्पेक्टस एंड सी, मशीन लर्निंग, सॉफ्ट लर्निंग, ब्ला 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 ब्ला, एंड ऑफ द डे कंप्यूटर साइंस ही है ना। घुमा फिरा के हिंदुस्तान में पूरी इंजीनियरिंग की ब्रांच की बाकी सीट्स अलग, कंप्यूटर साइंस के अकेले उससे ज्यादा भर्ती है। पागल है क्या लोग? नहीं, उनको पता है कि ये अगले 2 डिकेड्स तक तो बच्चे को भूखा नहीं मरने देने वाला। यही एआई के साथ होने वाला है, यही होने वाला है। अगर आपने ब्लॉकचेन को, एआई को अभी पकड़ लिया तो बाथरूम तक में भी एसी लग जाएंगे आपकी पहली नौकरी में। अगर आपने लेट पकड़ा तो एसी तो फिर भी लगेगा, लेकिन पहले स्कूटर चलाना पड़ेगा। तो चॉइस इज योर्स, हाउ टू यू मेक अ हॉट केक एंड अ कोल्ड केक। यस, हैंड्स आर सेम बट चेंजिंग देयर रोल्स। आज भी उतने ही वर्कर चाहिए। हमने ऑटोमेशन करना है ट्रैफिक। आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक पुलिस की छुट्टी हो जाएगी? नो, उनके बेल्ट पे कैमरा आ जाएगा, उनके कॉलर पे माइक आ जाएगा। हम फोटोग्राफ खींच रहे हैं, आपके घर में ईमेल करेंगे, चालान कलेक्शन तो फिर भी करना पड़ेगा। अगर हमने, आप मुझे साथ कभी भी बैठ के बताइए किस पर्टिकुलर जॉब में आपको लग रहा है कि नौकरियां खत्म हो रही है। मैं आपको बता सकता हूं कि 10 टाइम्स ज्यादा नौकरी बढ़ रही है हमारे देश में। आज हमारे देश को कम से कम हर इंस्टीट्यूशन को, हर बैंक को, हर इंडस्ट्री को एक वेब डिजाइनर चाहिए, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए, एक एआई एनेबलर चाहिए ही चाहिए। कौन भरेगा उसका जीएसटी? उसकी वेब डिजाइनिंग करके मार्केटिंग कौन करवाएगा? आज तो जो मेरे पटियाला में, जिसकी कचौरी लेने के लिए मैं जाके लाइन पे लगता था, वो नाला भी था, सौदराम कचौरी वाला, मेरे पटियाला में मशहूर है, आप कोई पटियाला से बिलोंग करते तो समझेंगे। वो नाला भी कितना गंदा था ना, तो वो ढक गया, लेना पड़ता था। अब मैं घर में बैठ के 2 मिनट में कचौरी मंगा रहा हूँ, तो लाने वाला कौन है? मेरे लिए समबडी इज वर्किंग ना, उसको उसके पैसे भी मिल रहे हैं ना। इसी बहाने मेरी कचौरी के साथ किसी के घर में भी रोटी जा रही है, मुझे कितनी खुशी होती है। आई एम पेइंग द सेम कॉस्ट। मैं वहां जाऊंगा तो भी 15 रुपए कचौरी है, घर में आएगी जोमेटो से तो भी 15 रुपए कचौरी है। हमने ऐप के साथ नौकरी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? क्वालिटी इंप्रूव किया कि नहीं किया? अब कभी सादराम कचौरी पे कचौरी घर में आके खा के कभी वहां पे जाके दोबारा बोला तुम्हारी कचौरी में नमक तेज था, आज आप 2 सेकंड में रिव्यू डाल देते हो, टुडेस कचौरी वाज स्टेल, योर पोटैटो सब्जी वाज नॉट गुड, उसके टीआरपी नीचे। अगले दिन वो बंदा बनेगा और अपना आलू ठीक पकाएगा, अपनी कचौरी ठीक पकाएगा। कौन लड़ने जाता है? कोई नहीं लड़ने जाता था। अब लड़ने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास रिव्यूज आ रहे हैं, उसके पीछे कौन काम कर रहे हैं? सो मैनी
analytics, data analyst. Such a huge openings in my country for the data. You want to be data scientist, data statistician, data analytics, data architecture, data manager, AI expert, blockchain expert, IoT expert. You tell me, you have a jobs like anything. Forget it whether you have done even BTech or not. I can give you the job even with the metric, with the some skills you have. I'm not asking your degree. I'm asking your skills. Skills is important. अभी अगले 3-4 साल के बाद 4 साल की डिग्रियों में ज्यादा बच्चे नहीं जाने वाले हैं. आप वो स्किल्स अनेबल्ड प्रोग्राम में जाने वाले हैं. दैट्स व्हाई आपके वहां पे क्या आ गया, ओडीएल आई कि नहीं आई? लानी पड़ी ना, क्योंकि उनको पता था कि मुझे अब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग पे जाना पड़ेगा. बच्चे कैप्सूल कोर्स करेंगे साल का, 2 साल का. यानी कि अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो बीए भी करके आएंगे ना दूसरे कॉलेज से, वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एंट्री लेंगे 1 साल के प्रोग्राम की. सर मुझे नौकरी लेनी है, मुझे स्किल्स लेनी है. मुझे 4 साल की आपकी डिग्री ने रोटी नहीं दी है, लेकिन मेरे के 6 महीने की आपके इस प्रोग्राम ने स्किल्स देनी है और मैं रोटी खाऊंगा 60 साल. दैट इज गोइंग टू बी देयर एंड इट इज गोइंग टू बी देयर. So these are the areas which has to be get explored. Challenges मैं कभी मना नहीं करूंगा. चैलेंज किस में नहीं है? हर चीज में चैलेंज है. सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक चैलेंज है. अगर नल नहीं खोलोगे तो पानी नहीं आएगा. अगर तौलिया लेके अपना फेस नहीं पूछोगे तो कोई आपका फेस पहुंचने वाला नहीं है. तो चैलेंज तो है भैया. टॉवल तो होना ही चाहिए. अच्छे दिखने के लिए ढंग के कपड़े तो पहनने पड़ेंगे. चैलेंज तो है. ये तो बैठे हो ऐसे घर में. सो कैश फ्लो मैनेजमेंट, हायरिंग एम्प्लॉइज, टाइम मैनेजमेंट, डेलीगेशन टास्क, choosing what to sell, marketing strategy, capital, strapped budget, business growth, of course self doubt. पहले तो अपने आप पे डाउट है, भैया पापा मैं इस काम के लिए फिट हूं भी कि नहीं हूं. बेटा मुझे तो नहीं लगता. मम्मी से पूछ ले. मम्मी कहेगी बेटा पापा से पूछ तो बेटर है कि बेटा तो नहीं का है. मैं तो कहती थी बचपन से कि ढंग से पढ़ ले, तो पढ़ा नहीं. मामा यहाँ पढ़ाई की बात नहीं हो रही है. बेटा तुझे फिर एंटरप्रेन्योर के स्पेलिंग भी तो नहीं आ रहे हैं ना. एंटरप्रेन्योर के स्पेलिंग तो कम से कम आ जाते. साइन करना तो सीख लेता. एक डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बना लेता. बैंक तभी तो लोन देगा. वो तो इतनी स्किल्स तो लेनी पड़ेंगी. राइटिंग स्किल्स तो लेनी पड़ेंगी. स्पीकिंग स्किल्स तो लेनी पड़ेंगी. लिसनिंग स्किल्स तो लेनी पड़ेंगी. सो दैट आर द मिनिमम स्किल्स व्हिच मस्ट कैरी एवरी स्टूडेंट. दैट्स व्हाई वी डू द ग्रेजुएशन. द ग्रेजुएशन इज मैंडेट टू बी क्रिएट योर माइंडसेट, टू डेवलप योर माइंडसेट एंड टू ब्रिंग द सर्टेन स्किल्स. दीज आर द परमानेंट स्किल्स. मार्केट इश्यूज बहुत है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे. फाइनेंशियल भी डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन एक चीज और दिखाना चाहूंगा. अगर आप सक्सेसफुल वर्ड भी हटा दीजिए, आप एंटरप्रेन्योर बन गए ना, यू आर योर ओन बिजनेस. अपनी मर्जी से दुकान खोलूंगा मैं. आज नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कोई बात नहीं. और कल मैं 2 दिन नहीं आने वाला हूं. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है मुझे, ये पूरा बना के देनी है वेबसाइट. एंजॉय द प्रॉफिट्स. मोटा ऑर्डर आ गया है. मनाली का टूर पक्का है. तुम अपना टैक्सी तैयार रखो. जैसे डिलीवर किया मनाली जाएंगे. 5 स्टार होटल में रह के आएंगे. बच्चों को खाना खिलाएंगे बढ़िया. सेंस ऑफ प्राइड इन योर बिजनेस. अरे तुम्हें पता है मुझे आज किसका कॉन्ग्रेचुलेशन आया? मुझे आज जियो के मेन एचआर का कॉन्ग्रेचुलेशन आया कि आपने वो टेंडर उठा लिया जो टेंडर हम उठा रहे थे. एक प्राइड फील होता है यार. छोटी सी कंपनी 3 साल पहले शुरू की थी, आज बड़ा टेंडर हाथ लगा है. फ्लेक्सिबिलिटी. चलो यार 5 नए वर्कर उठाने हैं साउथ में से, लेके आएंगे. क्या करेंगे? थोड़ा धमाल करेंगे. यहाँ पे सागर रत्ना बना के दिखाते हैं. पंजाब में सागर रत्ना चलाना, यहाँ पे डोसा खिलाएंगे इनको साउथ वाला. तो ये क्या आ रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी. यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक. नहीं तो क्या था, ओके सर, यस सर. बड़े बड़े पढ़े लिखे हमारे देश में आईएम के एमबीए करके भी यस सर ही तो करते हैं. फिर फाइनली बॉस के कमरे में जाके करना भी पड़ता है. यस सर तो करना ही पड़ता है. हमारे देश के कितने सुपीरियर आईएएस ऑफिसर मतलब सकते हो ना यूपीएससी क्वालिफाई करना, फिर भी 5वीं पास के साथ जाके उसको वो बोलता है, ए इधर आबे सुन रहे, ये फाइल बाहर लेके जा. वो दूसरे एमपी को अंदर भेज. हाँ सर भेजता हूँ. सर आपकी चाय ठंडी हो रही है. फील तो बड़ा होता है. आईआईटी का ग्रेजुएट हूँ, यूपीएससी का टॉपर हूँ, आईएएस बना हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी लगा हूँ, और मुझे कह रहा है कि चाय का कप पकड़ा दे. ये 5वीं पास है, वोट बैंक लेके आ गया है, मेरे ऊपर मंत्री लग गया है. तो एंटरप्रेन्योर कम से कम ये फीलिंग नहीं लेगा. ये फीलिंग तो नहीं लेगा. वो अपने देश का खुद राजा होगा, अपने घर का राजा होगा, अपने खुद के सिस्टम का राजा होगा. दैट्स ट्रू. लेकिन संविधान के साथ चलना है. टैक्स देना ही देना है. टैक्स की चोरी नहीं करनी है. दैट शुड बी देयर. डिफरेंट अरीनाज, ओपनिंग्स, अपॉर्चुनिटीज आर देयर. आप सोच रहे होंगे कि ये इतने हो सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल भी, एनवायरमेंटल भी. सोच रहे हो ना? आप देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड पे पढ़ो. नाम सारे जाने पहचाने, वेल नो टू ऑल ऑफ यू.
You talk about Azim Premji, everybody knows. Oh sir, we know Shiva Nadar. शिव नाडर को कौन नहीं जानता, उनके नाम पे तो सर यूनिवर्सिटी है शिव नाडर। अभी रिसेंटली उन्होंने सर रिजाइन दिया अपना चेयरमैनशिप से HCL के। सर बजाज ऑटोज, ऑफ कोर्स वी नो वेल, सुनील मित्तल जी, भारती की एयरटेल, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब राइट हैंड साइड वाले नाम पढ़ रहे हैं आप, सर ये कौन है? ये तो सुना नहीं देखा सर, इंद्रजीत सिंह सर। सर आपका कोई स्टूडेंट है क्या? हाँ, ये मेरे देश के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनमें से कई तो स्कूल ड्रॉप आउट है और इनकी वर्थ भी मिलियन बिलियंस ही है। 23 साल 24 साल में ये एंटरप्रेन्योर बन गए थे। आइए इनकी स्टोरी पढ़े। आइए, अक्षय रुपेलिया, an Indian who became one of the youngest millionaire in the UK. He started dropsteps.uk, an online estate agency with 12 employees. With the company has managed achieve 12 million pound valuation within a year. सिंपल ग्रेजुएट है ये आपके हिंदुस्तान का बच्चा। कविता देखते कौन है ये? फाउंडर ऑफ फ्रेश पेपर्स। आपको पता है जितने आपके सबवे पे जो रोल करके आता ना आप खाते हो, वो जो पेपर है, वो पेपर कौन सा होना चाहिए? जो बायोग्रेडेबल होना चाहिए, यानी कि वो पेपर के ऊपर जर्म्स ना, प्रोडक्ट्स फ्रेश फॉर लॉन्गर आवर्स। बड़े बड़े नाम के उसके क्लाइंट्स हैं उसके। तिलक मेहता, वन ऑफ द यंगेस्ट, हु ओला और उबर किसके लिए? ढाबा वाला। आपको पता है पूरे बॉम्बे, अगर बॉम्बे रुक जाए अगर वहां पे डब्बे वाला ना हो तो, जो खाना पहुंचाते हैं, पानी की रैपर पहुंचाते हैं, उनके लिए ओला उबर चला दी एक्सक्लूसिवली। देखो एन पार्सल करके कंपनी बन गई। कृष्णीत अरोड़ा को पढ़ लेते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट, बेचारे ने तो +2 भी नहीं की मेरे भाई, और सर ये तो सक्सेसफुल है, इसने तो कंपनी लॉन्च की है। रिलायंस इससे काम करवाती है। दुबई में सर इसका कार्गो है खुद का, दुबई में इसका कार्गो है। जहाज पे सामान चढ़ेगा तो पहले इससे पार्सल बनेगा तो आपका चढ़ेगा। ये हमारे अरोड़ा साहब है, पंजाबी कृष्णीत। आइडिया दिमाग में आया, बच्चे ने कमाल कर दी। चलिए श्री लक्ष्मी को पूछते हैं क्या किया उन्होंने। रेनोल्ड वेबसाइट डिजाइनर। शी सिंगल हैंडेड डिजाइन 50 वेबसाइट्स इन लास्ट ईयर। Her work includes being awarded the world's youngest web designer award and running her own venture, e-design. गूगल करके देख लीजिए, कहीं कहीं डॉक्टर मन्ना झूठ तो नहीं बोल रहे। गूगल आउट करके देख लीजिए e-design किसने बनाया था, कितनी उम्र में शुरू किया था इस लड़की ने, और कितनी इसने MBA कर ली होंगी, जब PhD कर ली होंगी, जरा चेक कर लेना। अंशुमन सिन्हा, youngest talent manager at the age of 25, he runs a represent. So he is a multi-genre talent management company. मैंने आपको एक एग्रो एंटरप्रेन्योर भी दिखा दिया, सोशल एंटरप्रेन्योर भी दिखा दिया, अभी आपको मैं हर तरह का एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे एग्रो एंटरप्रेन्योर भी दिखा रहा हूँ, हर तरह के एंटरप्रेन्योर को मैं दिखा रहा हूँ। एग्जांपल लेके आया आपके निकाल के लिए। और यंग आप ही की उम्र के, आपसे 1 साल बड़ा, 2 साल बड़ा या 3 साल बड़ा, जो रणवीर है अलाबादिया, इज अ मैन विद मैनी टैलेंट्स। ये ऐसा यूट्यूबर है, इसकी जो कंपनी की प्रोडक्शन है, इसका जो बेसिक वो है ना, इसका बियर बाइसेप्स और दिस थिंग 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मतलब इट्स ह्यूज बिजनेस। इतना मोनेटाइजेशन कर लिया थ्रू यूट्यूब एटसेट्रा, एंड मेनी आर डूइंग टिकटॉक और समथिंग। एंड हमारी छोटी सी गांव की नूर, उसका घर ही बन गया, उसके पापा को नौकरी लग गई। बताओ उसने कौन सी MBA की और बीटेक की है। नूर ने अपने छोटे से टैलेंट को किसी प्रकाशित करवाया। पे लॉकडाउन के टाइम की 3 चीजें साथ लेके चलनी पड़ती हैं, किस्मत, समय और सही टैलेंट। किस्मत, समय और सही टैलेंट, तीनों में से एक भी छोटा सा कम होता है ना तो दिक्कत हो जाती है। कई बार किस्मत साथ नहीं देती, टैलेंटेड बहुत बैठे हैं। इंडियन आइडल पे देख के हैरान हो जाता हूँ मैं, क्या डांस करते हैं छोटे से बच्चे, डांस फॉर इंडिया, अरे अमेजिंग डांस करती है छोटी छोटी लड़कियां। लेकिन क्या सारी कटरीना कैफ बन पाएंगी? सारी करीना कपूर नहीं बन पाएंगी। लेकिन उनको आज एक प्लेटफॉर्म तो मिला जहां पे हम उनको देख पा रहे हैं कि क्या बच्चे हैं हमारे देश के, क्या टैलेंट है हमारे देश में। ये तो नहीं होता था हेमा मालिनी जी के टाइम पे। हेमा मालिनी जी ने कथक सीखा, भरतनाट्यम सीखा, तब जाके एक्ट्रेस बनी वो साउथ की, फिर हिंदी मूवीज में आई। कितनी कठिन थी। अब ये तो सीधे लॉन्च करके, आप पता कल साइन करवा के आके बप्पी लहरी जी, सीधा साइन करवाया उससे। इंडियन आइडल के अभी विनर निकले नहीं है, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे मेरी पिक्चर में तुम गाना गाओगी। अरे और नूरत दीदी की तो बात ही बन गई हमारी वेस्ट बंगाल वाली, क्या प्यारा गाती है वो, अमेजिंग, शी इज अ ग्रेट सिंगर। क्या था उसके पास? टैलेंट था, प्लेटफॉर्म मिला, किस्मत ने साथ दिया, टाइमिंग सही हुए, होगी, बात बन गई। बप्पी जी थे तो बप्पी जी ने साइन करवा लिया। अगर बप्पी जी थोड़े से ज्यादा बीमार होते तो ना आते। अब आके बैठे तो हुए थे ना कुर्सी पे, भले उठे नहीं है लेकिन आके तो बैठे हुए थे, तो बप्पी जी ने साइन करवा लिया। तो सारी चीजें मैच करके ना, आपकी टाइमिंग भी मैच करना बहुत जरूरी है। दीपांजलि एज अ ब्रेव सोल, इसने आपको पता है ऐसी कंपनी में किसी को नौकरी मिलती है तो 3 दिन घर में पार्टी चलती है। अरे आप अच्छा उसमें लग गए, E&Y में, PwC में, डिलॉयट में छा गए। इसने नौकरी छोड़ दी। कहती मेरे देश की महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है। उसने ऐसे सैनिटरी पैड्स बनाने शुरू किए। किससे वो हुई प्रभावित? अक्षय कुमार से।
उसकी मूवी से, पैडमैन से। शी ब्रॉट द बम्बूस, क्योंकि त्रिपुरा में तो बैम्बूस चलते हैं सारे, बैम्बूस से भी पैड्स बन सकते हैं। उसने सोचा, कमाल कर दी लड़की ने। तो क्या होगी, सोशल एंटरप्रेन्योर आ गई आपके बीच में। सोशल एंटरप्रेन्योर इंद्रजीत ने क्या किया, सी ऑफ द आई क्वांटा। आपको पता है बहुत लोग कैट क्वालिफाई करना चाहते हैं, 20 स्कूल्स में जाना चाहते हैं, जाओ ना विजार्ड ऑफ क्वांटस। खुद भले ने एमबीए किए कि नहीं किए, लेकिन 8000 स्टूडेंट्स को ये आईएम तक पहुंचा पाया। मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल कह रहा है, इंद्रजीत जी कह रहे हैं, ऐसा उन्होंने आई क्वांटा कोचिंग खोला। अब ये कोई 40 साल का प्रोफेसर तो नहीं है, 60 साल का, कि जो इतना पढ़ा रहा था। मेरे जैसा तो नहीं है, मेरे से तो आधी उम्र का होगा बेचारा, लेकिन कितनों को इसने रास्ता दिखा दिया। बन गया एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर कि नहीं बन गया? ही इज एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर। ऋषि अग्रवाल, young man who used the valuable insights pursuing the hobby, traveling, business, etc. तो इसने ऐसा बजट आपका बनाया कि सिंगापुर घूमने जा रहे हो, मुझे बताओ, मैं बताऊंगा कम पैसे में कैसे घूम के आना है। Which hotel you should go, which cab you must take, what to eat, what to go, where to go, what to not to go. गुरुग्राम में इसका ऑफिस बना लिया अपना। So he is a great entrepreneur. अगर ये 3 साल पुरानी भी बात है तो आज भी इनकी उम्र 30 साल से ऊपर नहीं हुई है किसी की। यू कैन गूगल आउट। तो हर साल ऐसे एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं। मैंने तो कुछ टॉप निकाले आपको दिखाने के लिए। दैट्स इट। 1 घंटा पूरा हुआ। अब आप जितनी लकीरें खींचना चाहते हैं आप लकीरें खींचिए, लेकिन लकीरें खींचने से ज्यादा सवाल पूछिए मुझसे। यू आस्क मी क्वेश्चंस, आई एम हैप्पी टू बी द आंसर, बट आई विल टेल यू, बहुत सारी चीजें क्लास में नहीं पढ़ाई जा सकती, बहुत सारी चीजें खुद बैठ के भी नहीं पढ़ी जा सकती। उसके लिए इस तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चाहिए। वी मस्ट लिसन समवन, वी मस्ट स्पीक विद समवन, वी मस्ट रीड समथिंग व्हिच शुड बी द आउट ऑफ करिकुलम। सारी करिकुलम की किताबें आपको नौकरी नहीं दिलवाने वाली हैं, आउट ऑफ करिकुलम किताबें भी पढ़िए। मैं भी पढ़ता था ना कंपटीशन सक्सेस रीडर डाइजेस्ट, मेरे सिलेबस में नहीं लिखा था बीटेक के कि कंपटीशन सक्सेस भी पढ़नी है, रीडर डाइजेस्ट में पढ़ता था, मैं ट्रिब्यून भी पढ़ता था, मेरे सिलेबस में नहीं लिखा था। When I read it, I came to know about what is happening in my country about this. So that's why I am comfortable. That's why you invited me. I could become a speaker because I have a content, I have an intent. This has to be created with learning, you know. I've learned from you people. आज आपने मुझे एक अच्छे सा वो पोस्टर दिखाया तो कल मैं कहूंगा भैया हाँ, रोने वाली शक्ल का बेबी का पोस्टर लगाया तो समझो कि इसको दुख है, या तो नंबर कम आए थे, या फिर ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी कब खोलोगे, हमें आना है, हम बोर हो गए हैं घर में, मम्मी पापा भी नहीं सोने देते हैं। तो आप जल्दी आ जाइए, बस हम आपको जल्दी बुलाने वाले हैं। बस यही भगवान से प्रार्थना कि थर्ड लहर जैसी कोई चीज हमारे कंट्री में ना आए और हम अपनी यूनिवर्सिटी में, हम भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं जितना आप हमें मिस कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी भी आपको उतना मिस कर रही है, आपका क्लासरूम, आपका बेंच। वो कहते हैं ना यार अणमुल्ले, लोग तो ये गाना गाते थे फेयरवेल के बाद, अब तो जो करंट डिग्री कर रहे हैं उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। कब वो हौसला वापस मिलेगा, कब हम अपनी चिट चैट करेंगे, कब जाके मैगी खाएंगे, कब अपना लिम्का पिएंगे। तो वापस आ जाइए सितंबर अक्टूबर में, लेकिन मास्क लगा के आइएगा। डोंट कम विदाउट मास्क, मेंटेन लिटिल सोशल डिस्टेंसिंग। हर यार होता है जरूरी। विद दिस आई जस्ट कंक्लूड एंड नाउ ओपन टू द ओपन हाउस फॉर द डिस्कशंस। Thank you, sir. Thanks a lot. I truly say that it's not written in my script, but जो भी आज आपने शेयर किया हमारे साथ वो हमारे हार्ट को टच किया एंड डेफिनेटली इट वाज माइंड ब्लोइंग। आपके एग्जांपल्स ने मुझे डेफिनेटली पूरे सेशन में गूज़बम्प दिया है। एग्जांपल्स व्हिच you use while explaining, and same goes with our participants also. So we'll be proceeding to the Q&A session, but before that I would like to take a please and welcome Sant sir in order to say few words for the session. Thank you, dear. Manja sir, thank you so much. I don't have any words to thank you because always you have been inspiring a generation of people actually with your kind words and also your time that you're devoting for all these sessions. It's really hats off to you. Chandigarh University will be coming back to you again for such initiatives, and it was really a great motivating session for us. So thank you so much for helping us out, and we need your mentorship and we need your support also in the future. And to the students and student friends, I should like to add few things over here, sir. Now the student branch is having close to 100 students, and next year we are planning to have at least 500 students to join our IEEE student branch and to reap the benefits. And regarding this particular event, the Tech Month, last year the initiative was started by Sugandha and her team, who is a branch counselor right now. And last year we had close to 5,000 plus students who have joined.
on various sessions. This year also, their sessions are going really well and wonderful sessions are going on. And because of these initiatives, we are having now Women in Engineering Society with Affinity Group with us, Photonic Society we have started, ComSec we have started, and Computation Intelligence we are about to start. So there are a lot of activities going on in the university also. So we would like to have your support in all these endeavors. And one more society that we are planning to start is Education Society. Okay. We have University Institute of Teachers Training also. We want to have a training kind of thing where the faculties are groomed to take up assessments in a different way. Students are given flexibility in terms of assessment and all these things. So I think your experience with the AICT and all will be helping us a lot in giving us mentorship in the society also. So I am already discussed with our principal of University Institute of Teachers Training. We'll come back to you on this. If possible, we'd like to have you as a mentor for our society also on that. So with these viewers, thank you so much. I'm not taking much of your time. Thank you so much for the amazing session, and thank you for your time also. And Brijinder, over to you. I think you should say a few words about sir also for his. Thank you, Shan sir. Sir, really, sir, Dr. Manpreet sir, whenever I'll join your session, wherever it is on the very best platform, I was next to the next level, motivated to next level, sir. This session, sir, really, I really appreciate your effort you put in this, your PPTs, and the way you present to the students is really amazing, sir. I can see the energy of the students. They are so much amazed to see that kind of session which you have delivered today, sir. Thank you so much, sir. Really, we will move forward to you to come and collaborate with us in this type of session in IEEE and many more in the university, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Brinder. It's a great support from you in my Photonic Society of our chapter, especially in the Delhi section. You are doing a very good job as a treasurer, and the whole. I really feel the Chandigarh University group itself is creating some great examples for our North Indian education system. So we be of that same track, and I will be the part of that. Wherever you feel that I can contribute, yes, I will be there as a teacher, as a commission, or whatever you want to be taking me in as a soldier. I'll be the part of this. Dear students, thank you very much. You made my day with such a great greetings. I could see on the chat box you have written about the session. This is the feedback. This is the true earning of the teacher. I earn with your words. You have written a one word for the 30 seconds, but your each word makes a sense for me. Each word makes a sense. आज के दिन बच्चों से कोई appreciation लेना इतना आसान काम नहीं है. आज बच्चा कहता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. तो पहले आपको जांचते हैं, सुनते हैं, परखते हैं, फिर अपने व्यूज देते हैं. फ्री में आज का बच्चा प्रेज नहीं करता है किसी की. वो जमाने लग गए कि हम पेरेंट्स के डर से प्रेज कर देते थे, पड़ोसियों के डर से प्रेज कर देते थे. आज का बच्चा बिल्कुल क्लियर कट बात करता है, कंटेंट पे बात करता है. सर बात अच्छी करोगे तो हमसे इज्जत ले लोगे, बात अच्छी नहीं करोगे तो हम मुंह बना के चले जाएंगे, नहीं तो इमोजी तो भेज ही देंगे आपको व्हाट्सएप पे. सो थैंक यू वेरी मच ऑल द ग्रेट स्टूडेंट्स दोस आर हियर. आज आप स्टूडेंट्स हैं, कल आप मेरे देश के कोई आप में से आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई अच्छा लीडर बनेगा. तब भी जब मैं मिलूंगा तो मेरी वो अगली अर्निंग होगी, तो आप मुझे रिकॉग्नाइज कर लेंगे. आप मेरी सफेद दाढ़ी को रखो, अरे ये मन्ना सर, बस आप इतना ही कह दोगे ना भीड़ में, ये मन्ना सर. I got my whole sessions honorarium back to me. Thank you very much. Thank you, sir. Adding to your words, what I feel that we have already crossed the appreciation for you. I can see that it's the most appreciation of ever for Tekaman session. None of the speakers have got this amount of appreciation from students. So really, it was one of the motivating session. And believe me, sir, I had joined this session just for 15 minutes, but the words which you shared with us, examples which you shared with us, really kept me, in simple Hindi we can say, man mugd kar dena, mesmerizing. It was really a mesmerizing session. So thanks a lot to you, sir. Thanks a lot to all the dignitaries present here. Yes, thank you so much, sir, for the wonderful session. And on behalf of IEEE Chandigarh Society and the Photonic Society, I would like to facilitate your token of appreciation. Thank you so much, sir, for the enlightening our knowledge and inspired us, your words, sir. Sir, thank you so much, sir. Thank you, Pratik. Thank you very much. Thank you, Vaibhav. Thank you, all of you. Thanks a lot, sir. So at last but not the least, participants, we have shared the feedback form with you in the chat section. So do fill that feedback form, as your feedback is always welcomed by us. Including that, I would also like to thank Shan sir
for joining this great session. Virender ji sir for joining this session. IEEE Photonics Chair Pratik Srivastava sir for joining this session. Thanks a lot to everyone. Definitely we'll be bringing much more good sessions for you people. So keep joining us. Thanks a lot. Have a nice day. Bye-bye. Take care, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir, you can close the recording. Vrinder sir,